Good morning all. Share the screen. Start as fast as you can. Komal. 1 minute. Ryan's trait theory was not completed, right? मैम टाइप थ्योरी से बचा हुआ है मैम. पर्सनल साइकोएनालिटिक थ्योरी हो चुका है. टाइप थ्योरी, ट्रेट थ्योरी एंड सेल्फ थ्योरी बचा हुआ है मैम. Ma'am, screen is visible. Yes. Can you start, ma'am? Yeah, sure. Waiting for that only. Good morning to everyone. Thank you, ma'am, for giving us this opportunity. I am Shams Kumar, along with Komal Kumari. Topic for our presentation is personality. Now let's start. I had already completed one type of personality of theory, that is psychoanalytic theory. So now I move to second type of theory, that is type theory. Type theory. Type theory then is the belief that an individual personality can be qualified into a few unique categories. It is a theory that has been around a long time and continues to have a great many followers today. Type theory, there are four types of type theory. First one is Sheldon's theory. Second one is Jung's classification of personality theory. Third is Kretschmer's theory. Fourth one is Hippocrates theory. The first is Sheldon's classification of personality. Sheldon associates body type with personality. Traits called somatotypes. Each somatotypes have unique psychological features and associate personality traits. Sheldon's divide personality into three types. First is endomorphic, second ectomorphic, and third is mesomorphic. एंडोमॉर्फिक का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो है फैटी राउंड बॉडी, मैच्योर अपीयरेंस, वाइड हिप्स एंड नैरो शोल्डर. और उसी का पर्सनालिटी सोशेबल, लविंग, फूड लवर, टॉलरेंट, अफेक्शनेट, एंड नेक्स्ट वन एक्टोमॉर्फिक, जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर है थिन बॉडी, यंग अपीयरेंस, लार्ज ब्रेन, नैरो शोल्डर. एंड वहीं पे इसका पर्सनालिटी ट्रेट है सेल्फ कॉन्शियस, इंट्रोवर्टेड, एनेक्शियस, आर्टिस्टिक, थॉटफुल. एंड मेसोमॉर्फिक का फिजिकल स्ट्रक्चर है लार्ज हेड, मस्कुलर अपीयरेंस, ब्रॉड शोल्डर्स एंड नैरो वेस्ट. और उसी का पर्सनालिटी ट्रेट जो है एडवेंचरस, कॉर्जियस, बोल्ड, physically active. Second one is Kretschmer's theory of personality. Given by Ernst Kretschmer, he classified the type of person by collecting psychological traits with personality traits. He defined three types of personality traits. First, pycnic, athletic, and leptomastic. पाइकनिक में फिजिकल स्ट्रक्चर जो है फैट बॉडीज है और उसका पर्सनालिटी ट्रेट सोशिएबल, हेल्पिंग अदर्स, गुड नेचर, जॉली. एथलेटिक में फिजिकल स्ट्रक्चर जो है बैलेंस्ड बॉडीज एंड उसका पर्सनालिटी ट्रेट जो है एनर्जेटिक, ऑप्टिमिस्टिक, एडजस्टेबल आता है. और थर्ड लेप्टोस्मैटिक में फिजिकल स्ट्रक्चर जो है थिन बॉडीज आ जाता है और पर्सनालिटी ट्रेट में एंटी सोशल, रिजर्व्ड, शाई, सेंसिटिव आता है. And third type is Jung's classification of personality. There are three types of Jung's classification of personality. First one is introverts, second extroverts, and third ambiverts. Firstly, Jung's focus on flow of libido. He gave the name of libido as life monitoring energy. Outward, एक्सट्रोवर्ट, आउटवर्ड जब होता है फ्लो ऑफ लिबिडो का तो उसको एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, जिसमें आता है आपका सोशली एक्टिव, प्रैक्टिकल चेंज सीकर, इजिली गेट बोर्ड, टॉकेटिव, एक्सप्रेसिव. और इनवर्ट जब होता है तो उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं, जिसमें आता है थ्योरेटिकल, डिटैच्ड, मूडी, अनस्टेबल, इन रिलेशनशिप, फ्यूजी, गुड राइटर्स, एंटी सोशल. If quality of introvert and extrovert are balanced in any person,
then they are called ambiverts. And last one is Hippocrates theory. The fluids present in our body gives us unique temperament, leading to our unique personality. The body consists of blood, yellow bile, phlegm, black bile. ब्लड जो सैंग्विन भी बोलते हैं उसमें आता है लाइट हार्टेड, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, एडजस्टेबल, प्लीजर सीकिंग, टॉकेटिव. एंड येलो बाइल इसको कोलेरिक कहते हैं. ये इरिटेबल, एंग्री, पैशनेट, एक्टिव, इमेजिनेशन, रेस्टलेस, इंपल्सिव होता है. फ्लेगम में जिसको फ्लेगमेटिक बोलते हैं उसमें आता है कोल्ड, काम, स्लो, रिलायबल, कंट्रोल्ड. ब्लैक वाइल जिसमें मेलानोलिक होता है उसको बोलते हैं बैड टेम्पर्ड, डिजेक्टेड, सैड, सेल्फ इन्वॉल्व, डिप्रेस्ड, रिजर्व्ड, रिगिड. And third type of theory of personality is trait theory. The trait theory asserts that an individual is composed of a set of definite predisposition of attributes called as traits. These traits are distinguishable and often long-lasting quality of a characteristics of a person that makes him different from the others. The two most common traits theory are: first is Alport's trait theory and second is Cattell's trait theory. Alport's trait theory. The theory is given by Gordon Alport. According to him, the personality of an individual can be studied through a distinction between the common traits and the personal dispositions. The common traits are used to compare the people on the ground of six values, such as religious, social, economic, political, aesthetic, and theoretical. Besides the common traits, there are personal dispositions which are unique and are classified as follows. First, cardinal traits. The cardinal traits are powerful, and few people possess personality dominated by a single trait, such as Mother Teresa's altruism. Second one is central traits. These traits are the general characteristics possessed by many individuals in the varying degrees, such as loyalty, friendliness, agreeableness, kindness, etc. And third is secondary trait. The secondary traits show why at times a person behaves differently than his usual behavior, such as a jolly person may get miserable when people try to tease him. Now, Cattell's trait theory. This trait theory is given by Raymond Cattell. According to him, the sample of a large number of variables should be studied to have a proper understanding of the individual personality. He collected the live data, experimental data by measuring questionnaire data gathered from the introversion of an and done to the factor analysis to identify the traits that are related to one another. And last one is self theory. The self theory emphasizes on the set of perception of an individual has for himself and the perception of the relationship he has with others and the other aspects of life. Carl Rogers has contributed significantly towards the self theory. The self theory comprises of four factors that are explained below. First one is self-image. Self-image means what an individual thinks about himself. Everybody has certain beliefs about themselves, such as who or what they are. These beliefs form the identify a person. According to Erikson, identity is formed through a lifelong development, usually unconscious to the individual and his society. That is, an individual forms perception about himself unconsciously according to the social circumstances. Second is ideal self. The ideal self means the way an individual would like to be. It is very much different from the self-image, as it shows the ideal position perceived by an individual, whereas the self-image is the reality that an individual perceives. Thus, there could be a gap between these two. Ideal self act as a stimulus to motivate an individual to undertake those activities that are in compliance with the characteristics of his self ideal. Third one is looking glass self. The looking glass self means an individual perception of how others are perceiving.
his qualities or feeling about him. Simply, it is the perception of others' perception. That is, perceiving what other perceive about yourself and not see what actually you are. Last one is real self. The real self is what others show you with respect to your self-image. An individual's self-image is confirmed when other responds to him and shares their beliefs or perception about what they actually feel about him. Thus, is taken as feedback from the environment that helps an individual to adjust the self-image accordingly to be in line with the cues he had received. Thank you. Now I would like to call Komal Kumari for further presentation. Thank you, Shreyans. First of all, good morning, ma'am. And I am here to give a presentation on the topic personality. And I have to explain the last topic of personality chapter, that is dimensions of personality. This theory have given by two people, the big five personality traits by Ernest Hughes, and the second one is Raymond Crystal. The advanced version was given by J.M. Digman. Now, the big five personality traits are, the acronym of personality traits are OCEAN. O for openness, C for conscientiousness, E for extraversion, A for agreeableness, and N for neuroticism. Now I explain one by one all the points. First one is openness. Openness is one of the five personality traits of the Big Five personality theory. It indicates how open minded a person is. A person with a high level of openness to experience in a personality test enjoys trying new things. They are imaginative, curious, and open minded. Individuals who are low in openness to experience would rather not try new things. They are close minded, literal, and enjoy having a routine. People who are high in this trait are very creative, open to trying new things, focused on tackling new challenges, happy to think about abstract concepts. And people who are low in this trait dislikes change, does not enjoy new things, resist new ideas, not very imaginative, and dislikes abstract or theoretical concepts. The second one is conscientiousness. It is the personality trait of being careful or diligent. Conscientiousness implies a desire to do a task well and to take obligations to others seriously. They exhibit a tendency to show self-discipline, act dutifully, and aim for achieving. They display planned rather than spontaneous behavior, and they are generally dependable. People who are high in this trait are spends time preparing, finishes important tasks right away, pays attention to detail, enjoys having a set schedule. And people who are low in this trait dislike structure and schedule, makes messes and does not take care of things, fails to return things or put them back where they been. And the third one is extraversion. It indicates how outgoing and social a person is. A person who scores high in extraversion on a personality test is the life of the party. They enjoy being with people, participating in social gatherings, and are full of energy. A person who in extraversion is less outgoing and is more comfortable working by himself. People who are high in this trait are enjoys being the center of attention, likes to start conversation, enjoys meeting new people, has a wide social circle or friends and acquaintances. And people who are low in this trait prefer solitude, feels exhausted when having to socialize a lot, finds it difficult to start conversations. The fourth one is agreeableness. A person with a high level of agreeableness in a personality test is usually warm, friendly, and tactful. They generally have an optimistic view of human nature and get along well with others. A person who scores low on agreeableness may put their own interests above those of others. They tend to be distant, unfriendly, and uncooperative. People who are high in this trait are has a great deal of interest in other people, cares about others, feels empathy and concern for other people,
and who are low in this trait takes little interest in others, does not care about how other people feel, has little interest in other people's problems, insults and betters others. And the last one is neuroticism. Neuroticism is a trait characterized by sadness, moodiness, and emotional instability. Individuals who are high in this trait tend to experience mood swings, anxiety, irritability, and sadness. Those who are low in this trait to be more stable and emotional resilience. People who are high in this trait experiences a lot of stress, worries about many different things, and low in this trait emotionally stable, deals well with stress. Now, I am explaining MBTI. MBTI stands for Myers-Briggs Type Indicator. Have you ever heard someone describe themselves as an INTJ or an ESTP and wondered what those cryptic sounding letters could mean? What these people are referring to is their personality type based on the Myers-Briggs Type Indicator. The Myers-Briggs Personality Type Indicator is a self-report inventory designed to identify a person's personality type, strength, and preferences. The questionnaire was developed by Isabel Myers and her mother, Catherine Briggs, based on their work with Carl Jung's theory of personality types. Now, I am explaining types of MBTI. First one is ISTJ, the inspector, ISTP, the crafter, ISFJ, the protector, ISFP, the artist, INFJ, the advocate, INFP, the mediator, INTJ, the architect, INTP, the thinker, ESTP, the persuader, ESTJ, the director, ESFP, the performer, ESFJ, the caregiver, ENFP, the champion, ENFJ, the giver, ENTP, the debater, and the last ENTJ, the commander. Now, I explain development of Myers-Briggs test. Myers created the first pen and pencil version of the inventory during the 1940s, and the two women began testing the assessment on friends and family. The overview of this is extroversion, introversion, sensing, intuition, thinking, feeling, judging, and perceiving. Thank you to all for giving your precious time. Thank you, ma'am. Good. Presentation was nice. But कोमल, बस एक सजेशन है आपके लिए, जस्ट आवाज में थोड़ा बोल्डनेस लाए. ठीक है, प्रेजेंटेशन सबका बहुत अच्छा था, माही का भी, गौरव का भी, इवन श्रेयांश का भी. श्रेयांश कुछ कुछ आप एक्स्ट्रा इसमें डाले जो इवन नेट में भी नहीं पूछा जाता है. हिपोक्रेट्स थ्योरी वगैरह जो है वो हार्डली पूछता है, इट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट. और अगर आप लोगों के लिए मैं बोलूं क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो छोड़ के नहीं जाना है, जो था ना वो गूगल पे सर्च करने पे टाइप 3 में मिल नहीं रहा था, तो मैंने यूट्यूब पे गया और टाइप 3 सर्च किया, तो मैं उसमें ये सारा कुछ दिखा हुआ था, तो मैंने वहां से कॉपी कर लिया. तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली. इट्स गुड नॉलेज, हमेशा कभी कोई भी नॉलेज खराब नहीं में भी होता. टाइप 3 नहीं दिए हुए था, आप जो पीडीएफ भेजे हैं थ्योरी उसमें मैंने टाइप 3 लिखवाया था शायद. यस मैम लिखवाई. थ्योरी तो मैं लिखवाई हूँ, ऐसे छोड़ तो नहीं सकती कोई चीज, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैंने नहीं कंसिडर किया. थ्योरी बहुत सारा है, बहुत सारे स्कॉलर्स ने दिया है. ये सारा जो साइकोलॉजी का जितना थ्योरी है ना, ये सारा उठा करके इसमें अगर आप डालें वो भी कम पड़ जाएगा. बहुत लोग हैं देने वाले. ठीक है, सबका अलग अलग सर्वे है, अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, बट इतना नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, क्या रिक्वायर्ड है? एक बिग 5 थ्योरी वो आप देख के जाएंगे, एमबीटीआई देख के जाएंगे, सेल्फ थ्योरी, और ट्रेड थ्योरी में बस ये आपका अल्पोर्ट्स और कैटल्स वाला, ये सारा चीज मैंने डिस्कशन किया है. ठीक है, जंग्स थ्योरी, ठीक है, जंग्स थ्योरी पता होना चाहिए, दैट्स इट. फिर एक और आपका थ्योरी था सेल्डन्स थ्योरी, भी चलो कॉमन है, लेकिन आपके ये बीबीए पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, एक और कौन सा था? एक और था एक क्रिसमस थ्योरी था. क्रिसमस थ्योरी भी जरूरत नहीं है. ठीक है, आप बाकी सब पे टाइम वेस्ट मत करिए क्योंकि बहुत सारा थ्योरी है पढ़ने की. राइट, आप पढ़िए, नॉलेज लीजिए, इट्स गुड, बट एग्जामिनेशन टाइम में आप इतना ही देख करके जाए. ठीक है, नेक्स्ट. पढ़े नहीं है मैम ये सब, तो अब क्लास नहीं किए तो ये
आपकी प्रॉब्लम है ना, क्लास कर क्यों नहीं रहे थे? दिक्कत है, टाइम वेस्ट हो जाता है क्लास करने में, है ना। खैर, इन्हीं आओ, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज ऑन परसेप्शन। परसेप्शन के बाद फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल से शुरू होता है ना, तो फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल, परसेप्शन के बाद फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल, देन वैल्यू एटीट्यूड। ठीक है, परसेप्शन स्टूडेंट से मैम यहाँ आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज कट रहा है। अभी ठीक है। यस मैम ठीक है। यस मैम, मैंने कहा यस मैम अभी परसेप्शन वाले अभी प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर वाले रेडी रहेंगे, उसके बाद वैल्यू एटीट्यूड। ठीक है, परसेप्शन, शेयर योर स्क्रीन ना। उसके बाद जो सीक्वेंस है आपका, वो सीक्वेंस चलेगा जैसे सिलेबस में है, वैसे वैसे चलेगा। एक्सक्यूज मी मैम हम लोग का कब है? हाँ, स्क्रीन शेयर करिए। मैम परसेप्शन, एक्चुअली ग्रुप का जो एक मेंबर है ना वो एब्सेंट है आज। शाबाश, तो वो नहीं देगा। मैम बस एक ही मेंबर आज प्रेजेंट होगा, प्रिया सिंह। कौन से ग्रुप में? परसेप्शन के ग्रुप में? यस मैम, उसमें दो है, रिधि है और प्रिया है, तो रिधि एब्सेंट है। और प्रिया? शायद क्लास में है वो। हाँ, तो प्रेजेंट करिए। प्रिया का सर में अनम्यूट नहीं हो रहा है, मैसेज किए चैट। ये प्रॉब्लम कहाँ से आता है? जब सब लोग कर पा रहे हैं तो प्रिया भी कर पाएगी। मैम उसको फिर से लॉगिन करना होगा तो फिर वो ठीक हो जाएगा। कभी कभी हो जाता है मैम। करिए प्रिया फिर से लॉगिन। इधर से मेरा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ है। तब तक जिनको शुरू करना है वो शुरू करिए, जिनको शेयर करना है शेयर करिए, स्टार्ट करिए। एक मिनट में। प्रिया का 75 रोल नंबर। यस मैम, हम्म, अभी करना है। हाँ, मैम 2 मेंबर नहीं है। अभी एक मेंबर नहीं थे, अब 2 मेंबर नहीं है। मैम एक तो करेगा ही नहीं शायद, सचिन है जो नहीं करेगा। और ग्रुप में एक नाम क्यों देते हैं फिर आप लोग? ये बीच में इतना हिंड्रेंस मैम क्यों? पता नहीं पहले। प्रिया और रिद्धिमा है ना? हाँ रिद्धिमा अभी तो मैम क्लास ही नहीं ज्वाइन किए। आप लोग को पता था कि आज प्रेजेंटेशन होने वाला है? मैम हम्म, यस मैम, हम लोग को पता था कि कल ही प्रेजेंटेशन होगा, देन बट कल टाइम से हो नहीं पाया। तो ये तो मैं पहले ही आपको इंडिकेशन दे रही थी कि शायद टाइम ना बचे। अभी शुरू करिए, कम से कम एक शुरू तो करिए। ओके वैसे भी एक ही जन कर पाएंगे अभी। कैन आई स्टार्ट मैम? यस। Hello everyone, good morning. My name is Priya. Today the topic of my presentation is all about perception. Perception Can't hear you, Priya. Perception is an intellectual process of transferring sensory stimuli to meaningful information. It is the process of interpreting something that we see or hear in our mind and use it later to judge and give a verdict on a situation, person, group, etc.
Why it is important? Perception is very important in understanding human behavior because every person perceives the world and approaches life problems differently. If people behave on the basis of their perception, we can predict their behavior in the changes circumstances by understanding their present perception on the environment. Now we are going to discuss perceptual process. There are 5 stages in perceptual processes. First is observation of faces, selection of stimuli, organizing stage, interpretation stage, behavior response. First is observation phases. It is the process of filtering sensory information through the thought process. Input is received by hearing, sight, smell, taste, touch, and then analyzed through either rational or irrational thought. Second is selection of the stimuli. Personality traits influence how a person select perception. For instance, conscientious people tends to select details and external stimuli to a greater degree. The person will select perception in a way that fit with what they found in the past. Third one is organizing stage. It is the process of how we mentally arrange information into meaningful and digestible patterns. Fourth is interpreting a stage. The stage is governed by the perceiver, assumption of the people and event and attribute about causes of the behavior and feelings. Interpretation refers to the process by which we represent and understand a stimuli that affects us. Our interpretation are subjective and based on personal factors. Last one is behavior response. In this stage, the response of the perceiver taken on both covered and overt characteristics. Covered responses will be reflected in attitudes, motives, and feelings, and overt responses will be reflected in the action of the individual. That's all. All right. आपका ये परसेप्चुअल प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। कई जगह आप 3 प्रोसेस देखेंगे, कहीं कहीं यहाँ पे 5 स्टेजेस है, ठीक है। दोनों केस सही है, बट इट्स बेटर टू इलॉबरेट एंड राइट। ऑलराइट, एंड मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा हुआ कि ये एब्सेंट वो एब्सेंट तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा, इसीलिए सारे लोग अभी रेडी रहें, ठीक है। टॉपिक पहले दे दिया गया है, जितने लोग हैं रेडी रहिए, जो एब्सेंट होंगे ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा नेक्स्ट पे, ठीक है। मैम हम लोग का कब आएगा, कैसे पता चलेगा पावर पॉलिटिक्स? मैंने क्या बोला, ये अभिनव क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने क्या कहा कि सीक्वेंस में चलेगा जैसे सिलेबस में दिया हुआ है। तो सिलेबस में पावर एंड पॉलिटिक्स का पोजीशन कहाँ है, किसके बाद है? बुक में तो नहीं है मैम। सिलेबस आपको पता नहीं ना, कभी कभी पर एकदम मैम MSQ पीडीएफ जैसा बात करते हैं। पास पीडीएफ किसका? पीडीएफ पावर पीडीएफ तो आया है, आप भेजी थी पावर पॉलिटिक्स तो भेज ही चुकी हूँ। सिलेबस दिखा देती हूँ, सिलेबस आप लोग आराम मैम से कम्युनिकेशन प्रोसेस के बाद है। कम्युनिकेशन के बाद है मैम। तो फिर मैं बोल रही हूँ जैसा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को करना है, तो सिलेबस तो सबके पास होगा ही होगा। यस मैम। मैम पावर पॉलिटिक्स पे थोड़ा बता दीजिए आज, अगर कोई प्रेजेंटेशन देने वाले ना हो। अगर आप रीडिंग देंगे ना तो आप इजीली समझ जाएंगे। अभी मैं शेयर करके दिखाती हूँ, अगर एक भी वर्ड डिफिकल्ट मिल गया ना अभिनव, तब मैं पूछूंगी। अभी मैं शेयर करती हूँ, रुकिए। एक बार आप रीडिंग ही नहीं पूछ रहे, ऋतिक पूछ रहा। कौन? ऋतिक? हाँ, तो ये कामचोरी वाला बात हो। एक तो पहले पीडीएफ शेयर कर दीजिए, सब भेजने के बाद आप समझा भी दीजिए, सब चीज हो चुका है। एक बार रीडिंग देने में क्यों कष्ट है लोगों को? मैम ऋतिक को वाला क्लास नहीं किया था इसीलिए थोड़ा मैम उसको प्रॉब्लम आ रहा है, एब्सेंट। खैर वही मैं बोल रही हूँ, तो एक बार रीडिंग तो देना चाहिए ना। उसके बाद आप डिस्कशन करिए कि हाँ ये टर्म समझ में नहीं आया। देखिए ये है सिलेबस आपका, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया आपका, परसेप्शन हो गया, पर्सनालिटी हो गया।
अच्छा, ये इमोशन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह पे बात की है ना? यस मैम। ये टॉपिक तो किसी को मिला ही नहीं है। ये तो किसी को मिला नहीं है। प्रत्यय देखिए, अपना चेक करिए। नो मैम, ये नहीं मिला। ठीक है, तो इसके बाद मैंने कहा है फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर कल रेडी रहेंगे, उसके बाद वैल्यू एंड एटीट्यूड एंड जॉब सेटिस्फेक्शन रेडी रहेंगे। ठीक है, और चलिए इसको पेंडिंग में रखिए, देखती हूँ अगर कोई बच्चा रहेगा तो आगे इसको देखा जाएगा। और उसके बाद मोटिवेशन करेंगे, फिर फाउंडेशन ऑफ ग्रुप बिहेवियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल, लीडरशिप, कम्युनिकेशन प्रोसेस, पावर एंड पॉलिटिक्स, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ये Yes, रहेगा ma'am. सीक्वेंस। अब आ जाइए आप पावर एंड पॉलिटिक्स पे। पावर एंड पॉलिटिक्स में पावर किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए ऋतिक, आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ का पोजीशन अगर दे दिया जाए तो आप कितना पावर होल्ड करते हैं? 50%. 50% पावर। सीईओ के ऊपर सारा कारभार होता है। 100% मैम। 100% नहीं, कहने का मतलब ये है कि पावर होल्ड करते हैं आप। ठीक है, ऑलमोस्ट ज्यादा रेशियो में ही पावर आप होल्ड करते हैं। कैमरा ऑन करके बैठेंगे अभिनव, ऋतिक, स्पेशली आप लोग। यस और नो? आप ज्यादा पावर होल्ड करते हैं, तो वही चीज बोला जा रहा है कि पावर मतलब क्या, आपका क्या इन्फ्लुएंस है बाकी लोगों पे। ठीक है, रीड आउट करिएगा, मैं फटाफट मतलब आपको बस बता रही हूँ कि पावर मतलब क्या, कितना पावर आप होल्ड करते हैं, कितना आप इन्फ्लुएंस करने का पावर होल्ड करते हैं दूसरों को। ठीक है, अब सेकेंड है डिपेंडेंसी की बात हो रही है, डिपेंडेंसी इन पावर रिलेशनशिप। डिपेंडेंसी मतलब क्या, कि आपके पास जितना पावर उतना डिपेंडेंट बाकी लोग। ठीक है, अगर मान लीजिए जस्ट इमीडिएट सुपरवाइजर है आप, तो थोड़ा पावर अगर ऊपर वाले बॉस से आपका बनता है तो डिपेंडेंसी किस पे ज्यादा है? आप ऊपर वाले बॉस पे ज्यादा है। यस, वो उनके पास ज्यादा Yes. पावर है, वो तो आपके इमीडिएट बॉस को भी हैंडल कर लेंगे। तो ये हो Yes. गया आपका डिपेंडेंसी इन पावर रिलेशनशिप। अब इसका डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सेज है। क्या क्या कर सकते हैं? या तो आप मतलब मजबूरी में करेंगे फॉलो। अगर डिपेंडेंसी की बात करें तो आप मजबूरी में फॉलो करेंगे, यानी आप मतलब समझिए कि बहुत ज्यादा दबाव है, प्रेशर Yes, है कि right. फॉलो करना ही करना है। वही Yes. चीज है यहाँ पे, इतना सिंपल लैंग्वेज है। टारगेट पर्सन ऑन whom the power is exercised may resist the influence or may not behave in accordance to influencers wishes and the attempt of influence may be thwarted by the person। यानी हम लोग रिस्ट्रिक्ट करेंगे, शायद फॉलो ना करें। ठीक है, रेसिस्टेंस मतलब क्या? रोकना। Yes. कैमरा ऑन करिए ऋतिक, यस मैम। मुझे एक्सप्रेशन पता चलना चाहिए, क्योंकि आप लोग के यस मैम में यस नहीं होता है। कैमरा ऑन करके बैठ, वो मुझे शक्ल देख के पता चलता है समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। ऋतिक कैमरा ऑन करिए। ये है कहाँ? मैं प्रिपेयर हो रहा होगा। जल्दी प्रिपेयर होके आइए। तो रेसिस्टेंस मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे या रेसिस्ट करेंगे। ठीक है, ओबे नहीं करना चाहेंगे। नेक्स्ट वन इज ओबीडियंस। ओबीडियंस की बात करें तो यहाँ पे पापा मम्मी का बात मानना है, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो। तो ये क्या है? ओबीडियंस मतलब मजबूरी है। ठीक है, आइदर मतलब अगर नहीं करेंगे तो आई एम फोर्स टू डू ओबे देम। ठीक है, तो ओबीडियंस मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमको करना ही करना है, क्योंकि वो जो ऑर्डर पास करने वाले हैं वो ज्यादा पावर होल्ड करते हैं। ठीक है, Yes. एक हो गया रेसिस्टेंस की पावर नहीं फॉलो करेंगे, एक हो गया ओबीडियंस, पावर फोर्सफुली हमको करना है, एक हो गया आपका कंप्लायंस। कंप्लायंसेस मतलब या तो रिवॉर्ड चाहिए इसलिए, या तो पनिशमेंट की डर से। ठीक है, कंप्लायंस मतलब क्या हुआ? या तो रिवॉर्ड, या तो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन इसलिए फॉलो करना है। ठीक है, या इस तरीके से आप समझिए, अंडरलाइन किया हुआ है, देखिए, रिवॉर्ड फॉर रिस्पॉन्डिंग टू द रिक्वेस्ट और पनिशमेंट फॉर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इट। ये दोनों के डर से हम लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज कंफर्मिटी। कंफर्मिटी का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन है आपके ऑर्गेनाइजेशन में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे 75% अटेंडेंस पूरा होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो यू नीड टू फॉलो दैट। सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में भी आपका कुछ स्टैंडर्ड दिया हुआ है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो कंफर्मिटी की वजह से हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आपका है कमिटमेंट।
ठीक है, कमिटमेंट मतलब वर्ड सिंपल है कि हम, मेरा खुद का डिजायर है करने का, मेरे अपने तरफ से है कमिटमेंट दिया हुआ कि ये काम करना है, तो आप ये इंथुजियास्टिकली करते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्सेज जो आप पावर की तरफ देंगे वो यही 4 के बीच में लाई करेगा, 5 है ना, 5 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, रेसिस्टेंस यानी आप फॉलो नहीं करेंगे तो डंडा खाएंगे। ओबीडियंस मतलब फोर्सफुली आपको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, आपका कंप्लेंस यानी हम रिवॉर्ड या पनिशमेंट के डर से कर रहे हैं, या फिर कंफर्मिटी यानी स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन है तो फॉलो करना है, और कमिटमेंट यानी आप इंथुजियास्टिकली फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं, आप अपने बॉस से इन्फ्लुएंस्ड हैं। ठीक है, तो ये है आपका टाइप्स। सिंपल है ऋतिक? यस मैम। अब आगे बढ़िए, बेसिस ऑफ पावर, ये अथॉरिटी और ये वाला आप देख लीजिएगा, सिंपल है, अगेन कंपैरिजन किया हुआ है पावर और अथॉरिटी। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है आपका बेसिस ऑफ पावर। बेसिस ऑफ पावर में आपका बताया गया है, पहला एक फॉर्मल, इस तरीके से देखेंगे, फॉर्मल एक होता है, एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल में हो गया आपका एक लेजिटिमेट पावर, रिवॉर्ड पावर और कोहेसिव पावर, तो सेम रिलेटेड है। लेजिटिमेट पावर मतलब वहां पे द पावर टू मॉनिटर एंड यूज द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू accomplish organization goal। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लेजिटिमेट मतलब क्या हुआ कि स्ट्रक्चर है ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, आपके पास पावर दिया गया है, लाइक यहाँ पे देखिए, अनदर एग्जांपल इज दैट सीईओ हु यूज प्राइवेट जेट टू ट्रैवल। तो बाकी एम्प्लॉयज को तो ये पावर है नहीं, लेकिन सीईओ के पास पावर है। ठीक है, तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से जो पावर आपको मिल रहा है, ठीक है, तो ये हो गया आपका लेजिटिमेट पावर। फाइन, फॉर एग्जाम्पल फायरिंग, डिमोशन, सबऑर्डिनेट्स अथॉरिटी, ये सारा आपका लेजिटिमेट पावर में दिया गया है। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड पावर, तो नाम ही बता रहा है कि रिवॉर्ड पावर मतलब क्या, आपके पास पावर है दूसरों को पे राइज देने का, प्रमोशन देने का। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिवॉर्ड पावर। अब कोहेसिव पावर मतलब अब पनिशमेंट देने लायक है, द पावर टू पनिश और टू विथहोल्ड द पनिशमेंट। लाइक आपकी क्लास में सीआर प्रत्यय जरूर है, लेकिन उसको पनिशमेंट देने का पावर है क्या? नो मैम। ऑब्वियसली, तो उसी तरह सेम ऑर्गेनाइजेशन में किसी के पास सुपीरियर होता है, लेकिन आप डरेंगे किससे? जो पनिशमेंट जिसके पास देने का पावर है। ठीक है, कोएसिव पावर। ठीक है, तो सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है, फॉर्मल इंडिविजुअल पावर दिया गया है, किसी को लेजिटिमेट पावर है, मतलब स्ट्रक्चर वैसा है और पावर मिला है। रिवॉर्ड पावर यानी अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एचआर डिपार्टमेंट है, उनको पावर है राइज देने का, हाइक देने का। ठीक है, सेम वे कोएसिव पावर, किसी को राइट दिया गया है कि हाँ वो पनिश कर सकता है, राइट। तो ये है आपका फॉर्मल इंडिविजुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल पावर। और नेक्स्ट आपका बच रहा है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में आपका आ जाता है ऑटोमेटिकली कोई स्ट्रक्चर नहीं है दिया हुआ, वो ऑटोमेटिकली आप किसी चीज को ओबे कर रहे हैं अपने मन से। लाइक आपके क्लास में कोई है बहुत अच्छा प्रेजेंटर है, ठीक है, अब कोई अच्छा प्रेजेंटर है तो वो आप अपनी इच्छा से, उसकी एबिलिटी की वजह से उसके तरफ से आप उसके लिए आप इन्फ्लुएंस होंगे। यस और नो? कोई बहुत अच्छा प्रेजेंटर है या बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है तो आप ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस होंगे। सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में भी कि आप जहाँ काम कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी तरक्की करते हैं या हर सिचुएशन में बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आप उसके तरफ ज्यादा झुकाव रहेगा, उनके एडवाइस को आप सीख करेंगे। यस और नो? ये हो गया आपका एक्सपर्ट पावर। देखिए, an informal concept of power that stands for superior ability or expertise. In this, the group members will tend to consult this person for advice or help on the project. However, it is this dependency is what gives the individual power over their peer. Yes, that means he is expert because of their skill or ability. You try to seek advice from them. ठीक है, ये हो गया आपका एक्सपर्ट पावर। नेक्स्ट है रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर मतलब अब कोई फिल्मी दुनिया में कोई, मान लीजिए धोनी को आप लोग ज्यादा एडमायर करते होंगे, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, धोनी को हम देख लिए बूस्ट पीते हुए, बस इन्फ्लुएंस हो गए कि हम लोगों को भी पीना चाहिए। तो दैट इज आप किसी सेलिब्रिटी को अगर आप देख रहे हैं तो, राइट, तो ये हो गया रेफरेंट पावर। द फेम इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ रेफरेंट पावर। फेम की वजह से ऑब्वियसली धोनी को बहुत ज्यादा फेम मिल रखा है, जिसकी वजह से हम उसके तरफ बनना चाहते हैं। ठीक है, however this fame could be in the field of film, sports, music star. Moreover, agreeable, conscientious and giving people are also rewarded referent power. People with referent power possess high expertise. Their ability to obtain resources and also to secure the surrounding is what provide them referent power. समझ आया ऋतिक?
यहाँ Yes, पे हम ma'am. बेसिकली बात कर रहे हैं फिल्म स्टार, म्यूजिक स्टार और आपके स्पोर्ट्स स्टार के बारे में, ठीक है, जिसकी वजह से आप भी किसी ना किसी को जरूर इंस्पायर करते ही होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेफरेंट पावर। नेक्स्ट वन इज आपका कैरिज्मेटिक पावर। कैरिज्मेटिक पावर मतलब आपके आसपास कोई ऐसा है जिसको आप मतलब चाहते हैं इमिटेट करना, ठीक है। तो इंटेंस फॉर्म ऑफ रेफरेंट पावर दैट कम्स फ्रॉम समवन्स पर्सनालिटी। इट आल्सो कम्स फ्रॉम फिजिकल एट्रीब्यूट और एबिलिटी दैट इंड्यूस अदर्स टू फॉलो एंड बिलीव इन दैट पर्सन, ठीक है। ये आपके फैमिली के में भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कैरिज्मेटिक पावर, की जिसके तरह हम बनना चाहते हैं। इट कैन बी योर फादर ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी क्या मतलब, वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होल्ड करने वाले पर्सन है, मतलब उनके रहने से वहां का इन्वायरमेंट कंप्लीटली चेंज हो जाए। दैट इज कैरिज्मेटिक पावर। उनके पास इतना करिश्मा एक तरीके से उनके पर्सनालिटी में, यू वांट टू कॉपी देम, यू वांट टू इमिटेट देम, इतना ही है आपका पावर में। और पॉलिटिक्स में तो जस्ट डेफिनेशन लिखाया गया है। टफ था क्या ऋतिक? Yes, ma'am. No, ma'am. एक बार पढ़ते तो जरूर समझ में आता, सब सिंपल लैंग्वेज में, दैट टू अंडरलाइन किया हुआ, हाईलाइट किया हुआ है, एक एक लाइन का सारा डेफिनेशन है। खैर अब क्लियर हो गया? यस मैम। अब कोई मैम। दिक्कत नहीं? अब हेलो। आउटपुट की बारी है, ठीक है। चलिए अब अटेंडेंस दे दीजिए।